ملکی معاملات پر بیان دیتی ہیں اور اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ یہ ذرا نیب چیئرمین بتائیں کہ کب سے یہ ملکی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی ہے، کیونکہ نہ کسی ادارے نے شکایت کی ہے اور ملکی معاملات پر بات کرنا جو ہے وہ حق آئین کے اندر محفوظ ہے۔ تو میں چیئرمین نیب سے گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، ذرا آئین کو پڑھ لیں اور ملک کے قانون کو پڑھ لیں، اور اس قسم کے ہراساں کرنے کی پٹیشن جو ہیں وہ نہ ہی دے تو بہتر ہوگا۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں، آپ آج اس حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قانون یا آئین سے باہر آپ نکل جائیں۔ بات جو آج ملک کی بات ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ آپ نے کل دیکھا کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی ہے۔ یہ اس ملک کی نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک حکومت جب الیکشن ہار گئی تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی ہار کو تسلیم کرے، اس نے ملک کے الیکشن کمیشن پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے 20 پریزائڈنگ آفیسر اور بمع ووٹ یہ حکومت اٹھا کر لے گئی تھی، اور آج تک پتہ نہیں لگا کہ ان پریزائڈنگ افسروں کو کون سا محکمہ اٹھا کر لے گیا، کیوں اٹھا کر لے گیا۔ اور جب سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی نہ ہو سکی، اس ملک کا وزیر خزانہ جس کی کیمپین ملک کے وزیر اعظم خود چلا رہے تھے وہ ناکام ہوا، تو اس کا بوجھ آج حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر ڈالنا چاہتی ہے۔ ووٹ ڈالے حکومت کے ایم این ایز نے اپنے ہی وزیر خزانہ کے خلاف، کیونکہ یہ ایم این اے جب حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی تکلیف کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری حکومت ناکام ہو چکی ہے، تمہارا وزیر خزانہ ناکام ہو چکا ہے، تمہارا وزیر اعظم ناکام ہو چکا ہے، اس کا جواب دو۔ تو ان لوگوں نے جب عدم اعتماد کا اظہار کیا تو آج وفاقی کابینہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑی ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، لیکن اس حکومت میں انوکھے واقعوں کی تعداد ہر روز اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے اور ان چوریوں کا جواب دینے کے بجائے جو اس نے اغوا کیے پریزائڈنگ آفیسر، جو الیکشن میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی، دسکا میں ہارنے کے باوجود بھی آج الیکشن کمیشن پر حکومت جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف اور بڑی واضح ہے۔ یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے۔ آج حکومت کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کیس میں کیا فیصلہ دینا ہے۔ حقائق بڑے واضح ہیں۔ فیصلہ حکومت کے خلاف ہی آئے گا۔ فیصلہ آئے گا عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، فیصلہ آئے گا کہ باہر سے جو پیسے آئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپایا گیا۔ یہ پیسے کس کے تھے یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ آج اس حقیقت سے خائف ہو کر جو کہ ہر فیشسٹ ادارہ، ہر فیشسٹ سوچ رکھنے والا شخص یہی کرتا ہے کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتا ہے، آج یہی کام عمران خان اور اس کا ٹولہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات چلنی نہیں ہے، یہ ان کو بھی آج واضح ہو گیا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے سینٹ کا الیکشن بھی چوری کرنے کی کوشش کی، جس نے کیمرے لگائے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک پارلیمان کے ادارے کے اندر
कैमरे लगाकर वोट की निशानदेही करने की कोशिश की गई, किसने वोट कहाँ डाला है। आज तक कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो एक दफा फिर धांधली के जरिए मुल्क के सेनेट का चेयरमैन बन चुका है, ओथ उठा चुका है। वोट 49 वोट पड़े और बड़े वाजे हैं। हिदायत में लिखा हुआ है कि खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाएं, लेकिन इस मुल्क के सदर के नुमाइंदा उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए पीटीआई के एक शख्स जो पीटीआई के बेंचेस पर बैठता था, जो कानूनदान है, उसको ये समझ नहीं आई कि हिदायत नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। अब अदालतों के चक्कर लगेंगे, कल अदालतें फैसला करेंगी। तो जिस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन जिसके 100 वोटर हों उसमें भी कैमरे लगते हैं, उसमें भी धांधली की कोशिश होती है, और जब वोट गिनती होते हैं तो उनमें भी चोरी होती है। ये 2018 के इलेक्शन का एक रीप्ले है, और ये रीप्ले पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है। जो 2018 में हुआ आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। जो इस सेनेट के इलेक्शन में हुआ, आज अगर मुल्क में कोई अखलाकी कदरें होती, सेनेट का चेयरमैन खुद कहता मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मेरे 48 वोट हैं, आपके 49 वोट हैं, मैं घर जाता हूँ। ये एक तारीख रकम होती, पार्लिमानी रवायात की पासदारी होती, मुल्क की सियासी तारीख में एक बात रकम होती। लेकिन ये मौका भी इस मुल्क के सेनेट के चेयरमैन को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कुर्सी ज़्यादा अजीज होती है। कुर्सी पर बैठना मकसूद होता है, कीमत जो भी अदा करनी पड़े। यही बदनसीबी आज सेनेट के चेयरमैन की भी है और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की भी है। अब ये मामला न चलने वाला है, न चल सकता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह ये लोग एक्सपोज होंगे। ये इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे हकीकी केसों के सामने। फॉरेन फंडिंग का जो केस है, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट एक वज़ीर-ए-आज़म को तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकता है, हुकूमत तोड़ सकता है, तो फिर फॉरेन फंडिंग में जहाँ करोड़हार रुपये आया, बताया नहीं गया, ज़ाती अकाउंटों में आया, वो हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। ये सवाल है जिसके जवाब पाकिस्तान के अवाम मांगते हैं। और हर बात जो है वो मुल्क में महंगाई से जुड़ी हुई है। जब मुल्क के हुक्मरान इस तरह के चोर होंगे, जब मुल्क के हुक्मरान दूसरे इदारों पर चढ़ दौड़ेंगे, और ये सिर्फ पहली बात नहीं है, इससे पहले कौन सा इदारा इस हुकूमत ने छोड़ा है। और मैंने कल भी कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि ये अपने लाने वालों पर ही चढ़ दौड़ेंगे। ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जनाब भाई साहब ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस्तीफे देने का एक बार फिर मुलायम कराई है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इससे हट जाती है तो क्या जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौलाना के साथ खड़ी होगी, पीडीएम को बचाएगी, या फिर इस्तीफे नहीं देगी? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई यकीन दहानी नहीं किसी को नहीं कराई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन असम्बलियों में रहना ठीक नहीं है, इनसे इस्तीफे देने चाहिए। फैसला जो है वो पीडीएम की लीडरशिप करेगी। आज एक मीटिंग है, वहाँ भी डिस्कस होगा। हमें उम्मीद है कि एक बेहतर फैसला वहाँ से आएगा। ठीक है जी। सर, जो कैमरों वाला मामला है, जो सेनेट इलेक्शन के दौरान, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान कैमरे निकले, इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, या 2018 के इलेक्शन में जो आरटीएस बंद हुआ था उसी तरह ये भी? ये महमूद रहमान कमीशन से लेकर आज तक जो होता है, कमीशनों की जो हालत है, जो इस मुल्क में हकायक की हालत है, ये उसी के साथ रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब ये जवाब देना होगा कि कैमरे किसने लगाए हैं। यहाँ पर भी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के 3 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैमरे अपोजिशन ने लगाए हैं। तो मैं कहता हूँ फिर अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो। हम कहते हैं अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो सेनेट के हॉल में कैमरे लगाने का। हम ये पर्चा भुगतने को तैयार हैं, और वहाँ पर जो हकीकत है वो भी इंशाल्लाह सामने आएगी।
यही काम कर लें। सर हमने देखा डी चौक के ऊपर मुसद्दिक मलिक और दीगर जो आपके दीनी रहनुमा थे उन पर जूती वगैरह बरसाई गई थी। इसी तरह कल भी एक वाक़या हुआ है गिल साहब के हवाले से स्याही फेंकी गई है। ओवरऑल एक सियासी कायदीन के हवाले से ये अब जो एक नई रविश स्टार्ट हो गई है उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने जो जैली एतमाद का वोट लिया उसके बाद जो तकरीर फरमाई है उसको ज़रा देख लें। अगर मुल्क में लीडर ऑफ द हाउस जो एक इदारे का सरबराह होता है, कौमी असम्बली का सरबराह है, उसके 6 मेंबरान पर असम्बली के अहाते के अंदर हमला होता है, उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा वहाँ पर। उसने गालियाँ निकाली अपोजिशन लीडरों को, इल्ज़ाम लगाए, हर ओछी हरकत की, हर घटिया हरकत की। कौमी असम्बली का स्पीकर बैठा रहा। ये गिल साहब को मैं नहीं जानता हूँ, उन पर स्याही पड़ी है तो नहीं पढ़नी चाहिए थी। ये मैं कभी इन चीज़ों की हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये अफराद जो हैं जो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, उनको कोई हक नहीं है कि लोगों को जाकर गालियाँ निकालें। मैंने सुना है कि ये आदमी लोगों को गालियाँ निकालता है। जब गालियाँ निकालेंगे तो फिर कुछ तकलीफ होने का खदशा होता है, तो पुलिस साथ लेकर जाया करें। वो रिएक्शन तो नहीं कहीं क्योंकि वो हमारे तारिक फजल चौधरी के फार्म हाउस के ऊपर ये बाकायदा कहा था कि बंदा भी यानी कि 1 के बजाय 100 से जाना क्या होगा जी? मरियम नवाज ने तारिक फजल चौधरी के फार्म हाउस पे जो नून लीग की मशावरती इजलास था उसके अंदर ये बाकायदा कहा भी गया था और ये आपके हवाला भी किया गया था कि मेरे भाई हैं और इसके हवाले से जो है अच्छा एक इकदाम नहीं हुआ मुसद्दिक मलिक के हवाले से भी और ये जो ड्यूटी हो गई थी उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बहुत कह चुका हूँ, मुझे एक गाली देंगे इंशाल्लाह 10 दूंगा, एक हाथ उठाएंगे 10 दफ़ा मारूंगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। शुक्रिया। वो समझ नहीं पाए सवाल बड़े आंसर ये कल احتشام